Good morning, student. In last class, we have talked about the force, and in that I have taught you about contact force and non-contact force. So, what is contact force? When a force which come into exist when two objects are in physical contact with each other, like for example muscular force, and second is frictional force, and second I have talked about the non-contact force. Means a force come into exist when two objects are not in physical contact with each other. Then also a force come into exist, and force is exerted when the two objects are in interaction with each other. So gravitational force, magnetic force, electrostatic force, these all are the example of non-contact force. Okay, so muscular force, when we are lifting anything, when we are pushing anything, when we are pulling anything, in all that situation, a force is exerted between by our hand on the object which we have to pull or which we have to push, and that force is exerted by the muscle. That is said to be muscular force. You have seen in the case of bullock carts. Okay, in that all, where there is need of the force and that force is exerted due to our muscle, that type of force is said to be muscular force. जैसा आप लोग देखते हो कि हम लोग कोई भी चीज को लिफ्ट करते हैं तो हम लोग उस चीज के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है. अगर किसी चीज को हमें लिफ्ट करना होगा या किसी चीज को हमें पुश करना होगा तो हम लोग उस चीज के साथ किसके अंदर होंगे, फिजिकल कांटेक्ट में होंगे. जब तक हम लोग उस ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे तब तक हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं. तो अंडर दैट सिचुएशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स. सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे फ्रिक्शन फोर्स, इट exert between on the object when it is in motion. It exert between the objects. Why I am saying between the objects? Because when I am moving on the surface. When we are riding the bicycle, how we are riding the bicycle? We are riding the bicycle on the we can say on the surface. So in both the situation, when I am moving or when I am riding the bicycle, in both the case, I am in physical contact with that surface, and then a force is acting which is opposite to the direction of my motion. A force is acting which is opposite to the direction of my motion, and that is nothing but it is a friction force. So what is friction force? Friction always opposes the motion. So say we know that कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करते करते धीरे धीरे वो किस पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को मोशन में रखना होगा तो उसको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा. नहीं, ये थ्योरी रॉन्ग है. अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको मूव भी कराना होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, एज यू हैव स्टडीड अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन इन क्लास 7th, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको मोशन में रखने के लिए हम लोग को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है. वो फोर्स किस लिए लगाना पड़ता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें कौन सा लगाना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है.
इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि एक ऐसा सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, तो ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, वो मूव करता ही रहेगा, वो रेस्ट पे नहीं आएगा। रेस्ट पे ऑब्जेक्ट किसकी वजह से आता है? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, सो ऑब्जेक्ट कम इनटू रेस्ट व्हाई? ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स which always opposes the motion. So these are the example of our contact force. In the case of non-contact force, we talked about in non-contact force gravitation force, magnetic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स दैट इज सेड टू बी ग्रेविटेशन फोर्स। यस, और ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे इस यूनिवर्स में तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एंड दिस ग्रेविटेशन फोर्स की एक सबसे बड़ी खासियत है कि दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ, दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो, नहीं। दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में भी नहीं रहेगा तब भी उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? ग्रेविटेशन फोर्स। सेकेंड, मैग्नेटिक फोर्स। अगर दो मैग्नेट को हम लोग एक दूसरे के पास लाएं, वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन तब भी क्या होगा? बोथ विल अट्रैक्ट और बोथ विल रिपेल ईच अदर। That depends on the polarity. Means, or they are exerting a force when they are in interaction with each other, and a force is exerted when the two objects are not in physical contact with each other. अगर हम एक मैग्नेट ले लें, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लें, वो दोनों एक डिस्टेंस पे भी होंगे तो उनको ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ऐसे फोर्स को हम लोग, ये किसका एग्जांपल हो गया? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड देन ऑल्सो अ फोर्स इज एक्सर्टिंग। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यू हैव टॉक्ड अबाउट द व्हाइल वी हैव सीन दैट व्हेन वी आर इन द स्मॉलर क्लास we used to take a scale and we used to rub the scale on here, और उसके वजह से क्या होता था कि when we used to bring a piece of paper near that scale, that the scale attract that piece of paper, and this friction is said to be charging by this force is said also said by charging by friction. Means when we are rubbing the scale ऑन द हेयर, तो जब स्केल और हम लोग रब कर रहे हैं स्केल को हेयर पे, तो क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, और उसको वजह से एक चार्ज डेवलप्ड हो रहा है उस स्केल पे, जो कि पीस ऑफ पेपर को क्या कर ले रहा है? अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो दैट इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज हैपनिंग। Okay, so this was all about force, and the force what? Force के बारे में बताया कि we cannot see the force, we can only feel the force, and there are many effects of the force. There are many effects of the force. Okay, so this was the part force. Now in the next class, next video lecture, I will talk about the pressure. And I will do the revision of the topic pressure in the next class. Okay, and after that we will start friction. Thank you. God bless you.